Hello everyone, good morning to all. This is Sunita Yadav, your science teacher. In today's class, we discuss chapter number 1, crop production and management. In this chapter, we read about the first what is crop and the type of crop. First one is kharif and second one is rabi crop. Next, we also production and management point में agriculture practices we read together. What is agriculture practices? First point is preparation of soil. In preparation of soil, we read about plowing and leveling. Then after we also read selection and sowing of seed. In this method, we also we read about the traditional and seed drill. Next point is replenishment of nutrient. We replenish the nutrient with manure and fertilizer. Next point is our irrigation. Irrigation we studied about in previous class irrigation. First one is traditional and second one is modern. In traditional method, we read in about mode, rahat, deeply, and gen pump. And second, in modern method, we read about the drip and sprinkler system. Okay. Next point is agriculture practices is protection from weeds. Okay. So let's start our topic protection from weeds. What is weeds? The unwanted plants are called weeds. तो unwanted plants हैं जो फील्ड में अपने आप ग्रो हो जाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं बेटा? weeds बोलते हैं. क्लियर है? अब ये जो weeds है इन्हें हमने तो नहीं ग्रो कराया ना हम चाहते हैं कि इनको ग्रो कराना. तो सेम इसी तरीके से आपकी लाइन पूछो एंड पहेली went to a nearby wheat field and saw that there are some other plants in the field growing along with the wheat plant. जब wheat की crop है तो उसमें all plants are there wheat crops, but Pujo and Payali saw here some other crops are some other plants are also grow with the wheat plant. तो ये जो other plants हैं what we call this other plants या unwanted plants is called a weed. The weed are undesired plant that grow naturally along with the crop in the field. They need to be removed as they are harmful to crops. इन सबको क्या करना होगा? ये harmful है, unwanted है, undesirable plants है, तो इसीलिए requirement किसकी है कि इसको वहां से क्या किया जाए? Remove किया जाए. Next, removal of weeds is called a weeding. So first, what is weed? These undesirable plants are called weeds, and those methods we use to remove the weeds is called a weeding. ऐसे methods जो हम use कर रहे हैं इन weeds को remove करने के लिए, this process is called a weeding. I think it's clear. Okay. Why are weeds harmful to our crop? Maybe other plants are grow with our crop. So how? Why we remove these plants? हमें क्यों? Why we require to remove these plants? हमें क्यों requirement है इन plants को remove करने की? Okay. In a field, many other undesirable plants may grow naturally along with the crop. These undesirable plants are called weeds. The removal of weeds is called weeding, and weeding is necessary since weeds compete with the crop plant for water, nutrient, space, and light. Thus, they affect the growth of the crop. Some weeds interfere even harvesting and may be poisonous for animals and human beings. Okay, so why we require a weeding process? Why we require a weeding process? First, maybe weed compete with the crop plant from nutrient, space and light and water. जो plants हैं, जो weeds हैं, वो crop plant के साथ में क्या करेंगे? Maybe compete करेंगे, maybe water, nutrient and space and light के. Okay, तो first reason तो ये है कि the weeding is important. नेक्स्ट इज द इफेक्ट द क्वालिटी ऑफ मेन क्रॉप. अब देखिए कंपटीशन से जो क्रॉप ग्रो होगी तो उसकी जो क्वालिटी है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी. तो क्रॉप प्लांट की क्वालिटी को डिक्रीज होने से अफेक्ट होने से रोकने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वीडिंग प्रोसेस करना पड़ेगा. ओके. Weeds germinate and grow fast and interfere in the harvesting crop. जो वीट प्लांट होते हैं कंपैरिजन टू क्रॉप जल्दी से ग्रो हो जाते हैं. ओके. और सम वीड्स मे बी पॉइजनस एंड शुड नॉट बी बिकम ऑफ द क्रॉप. देखिए कुछ वीड्स क्या होती हैं? मे बी पॉइजनस होती है जिनको एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग दोनों ही एक नहीं कर सकते. अगर हम इन वीड्स को वीडिंग प्रोसेस के थ्रू रिमूव नहीं करेंगे तो जब हम इसको हार्वेस्ट करेंगे, हार्वेस्टिंग करेंगे, हार्वेस्टिंग मींस क्या होता है बेटा? कटिंग ऑफ क्रॉप. जब हम कटिंग ऑफ क्रॉप करेंगे, व्हेन वी कट द क्रॉप, तो दीस वीड्स आल्सो कट विद क्रॉप. और फिर ये जो क्रॉप है मे बी पॉइजनस हो सकती है एनिमल और ह्यूमन बीइंग के लिए. तो ये भी एक रीजन है कि वीडिंग प्रोसेस इंपॉर्टेंट है. ओके.
So next one is some weeds are gets affected with disease with damage the main crop also. Maybe weeds के अंदर कुछ ऐसी disease हो सकती है जो हमारी main crop को भी हो सकती है, तो maybe weeds are harmful to us. तो ये 4 to 5 reasons हैं कि why weeding is necessary. weeding process जो है वो necessary क्यों है? बिकॉज वीड्स प्लांट जो होते हैं वो कम्पीट करते हैं हमारे क्रॉप प्रोडक्शन से, उसकी क्वालिटी को डिक्रीज करते हैं. मे बी वीड क्या हो सकते हैं, पॉइजनस हो सकते हैं, मे बी वीड्स में कोई डिजीज हो सकती है जो हमारी क्रॉप को अफेक्ट कर सकती है. क्लियर है. नेक्स्ट जो है कंपैरिजन जो वीड्स का होगा वो क्या होगा, वीड और क्रॉप का कंपैरिजन करते हैं तो वीड्स क्या होती है, ग्रो फास्टर होती है. ओके तो इस वजह से प्रोसेस जो है वीडिंग का नेसेसरी है. ओके दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. Okay, farmer adopt many way to remove weeds. अब weeding तो हमें समझ में आ गया. What is weeding? The removal of weed is called a weeding. और why weeding is necessary? हमने 5 point read कर लिया. ठीक है. Farm अब आ रहा है कि how farmers weed control. Farmer which method they use to remove the weeds or how they are controlled. Okay. So farmer adopt many ways to remove weed and control their crops. Tilling before sowing of crops help in the uprooting and killing of weeds, which may then dry up and get mixed with the soil. The best time for the removal of weed is before they produce flower and seeds. The manual removal includes physical removal of weed by uprooting and cutting them and close to the ground for time to time. This is done by the help of kurpi. A seed drill is also used to uproot weeds. Okay, the first method is method of weeding control. The first method is a mechanical method. Okay, first method is a mechanical method. Weeds can be controlled by tilling or plowing the soil. Then we use the tilling process. When we use the plowing process, mostly weed plants क्या हो जाएंगी, weeds plants की जो seeds हैं या maybe पहले जो weeds plants है वो उनकी uprooting हो जाएगी, maybe वो seed बाहर आ जाएंगे. Some weeds dry up, उनमें से कुछ weeds क्या हो जाते हैं इस tilling करने के कारण या फ्लोइंग करने के कारण बाहर की तरफ वो आ जाते हैं और धीरे धीरे ड्राई होकर डेड हो जाते हैं. ओके सम इट्स ड्राई अप एंड सम गेट मिक्स्ड विद द सॉइल. ओके very often the weeds repair after the crop has grown. In the case we have been physically removed by using of खुरपी. हम किसका यूज करते हैं, उसको यूज करने के लिए मे बी खुरपी का यूज करते हैं. हमने सीड ड्रिल या शोइंग ऑफ मेथड में या बहुत सारे हमने क्रॉप को ग्रो कराने के लिए या रिमूव करने के लिए बहुत सारे फार्मिंग टूल्स पड़े. वन ऑफ द फार्मिंग टूल इज अ खुरपी. खुरपी वी यूज इन अ रिमूव द वीड विद मैनुअली जब हम वीड्स को रिमूव करते हैं तो वी यूज खुरपी. ओके वी यूज खुरपी to remove the weeds plants by uprooting and cutting them close to the ground. बिल्कुल ground के बिल्कुल पास से हम खुरपी की हेल्प से टाइम टू टाइम इन weeds plants को remove कर सकते हैं. ये मेथड है mechanically. Very often the weed repair after the crop has grown. In the case of weeds have to be physically removed by using kurpi, uprooting by hand or by cutting them very close to the ground. I think it's clear. Next one is new method is for weeding. It is a chemical method. Weeds are also controlled by using certain chemicals called weedicides. Those chemicals we use in a weeding process, those chemicals are called weedicides. For example, जैसे हम insects को dead करने के लिए जो chemical use करते हैं we call insecticide. ठीक है, पेस्ट को डेड करने के लिए जो केमिकल्स यूज करते हैं those chemicals are called pesticides. Okay, तो weeds को कंट्रोल करने के लिए रिमूव करने के लिए those chemicals we use, those chemicals are called a weedicide. I think it's clear. Here is 3 definitions are there in this topic. First one is weeds, second is weeding, and third one is weedicides. Okay, the example of weedicide most probably used one chemical 2,4-D. What is a 2,4-D? Okay, these chemicals are sprayed on the whole crop to kill just like that. Okay. Okay. 2,4-D, these are sprayed in the field to kill the weeds. They do not damage the crop. The weeds are diluted with water. First क्या करेंगे, weedicides को हम dilute कर लेंगे water में to the extent required, जितना भी requirement है हमारी, and sprayed in the field with the sprayer और sprayer की help से just like that spray करेंगे. Okay. Chemical method, weeds can be killed by spraying certain chemical called weedicide like 2,4-D. The chemicals are sprayed on the whole crop to kill the weeds. These chemicals do not damage the crop. It is a very important point. जो
these weedicide जो भी केमिकल है ये हमारी क्रॉप को कोई डैमेज नहीं करता, ओनली weedicides को डैमेज कर सॉरी weeds को डैमेज करता है. Okay, so do not damage the crop. The weedicides are a strong chemical and so are diluted with water and used in the required concentration. Weedicide are sprayed with the help of a sprayer on the crop before the flowering stage and seed formation of the main crop. देखिए weeding process, when weeding process is continue, when this weeding process is doing, तो वो टाइम कौन सा है? दिस प्रोसेस कंप्लीट बिफोर द फ्लावरिंग एंड सीड फॉर्मेशन. ओके, अगर सीड फॉर्मेशन हो जाएगा, फ्लावरिंग हो जाएगी तो क्या होगा? सीड स्प्रेड हो जाएंगे जिससे वीड प्लांट्स क्या होंगे? और ज्यादा ग्रो हो सकते हैं. इसीलिए सीड फ्लावरिंग स्टेज से या सीड प्रोसेस वाली स्टेज से बिफोर हमें वीडिंग प्रोसेस कंप्लीट करना होता है. The weedicide being harmful chemical need to be handled with care by farmers. It is advised that the farmer cover their nose and mouth with the cloth while spraying them in the field. देखिए जो ये weedicides होते हैं केमिकल हैं, ये हमारी जो बीट क्रॉप है या हमारी जो क्रॉप है उसको तो हार्म नहीं करते, बट फार्मर की हेल्थ को अफेक्ट करते हैं. स्प्रेइंग ऑफ weedicide may affect the health of farmer. So when they use weedicides, they cover their nose and mouth with a piece of cloth during spraying these chemicals, ताकि वो एयर के थ्रू या जब भी वो रेस्पायर कर रहे हैं उसके थ्रू उनकी बॉडी के अंदर एंटर नहीं हो. ओके, नेक्स्ट प्रोसेस इज द हार्वेस्टिंग. इट इज आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस in this chapter. Harvesting means simple line we describe a harvesting means क्या है? Cutting of tree. Harvesting means cutting and collecting the mature crop. Cutting and collecting the mature crop. Okay, the term of harvesting means cutting and collection of the mature crop. हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप इज एन इम्पोर्टेंट टास्क. जो हार्वेस्टिंग है क्रॉप की वो एक इम्पोर्टेंट टास्क है. देखिए जो फार्मर है उसने इतनी सारी मेहनत की है, देखो प्लोइंग की, लेबलिंग की, शोइंग की, देन मैन्योर, फर्टिलाइजर, प्रॉपर इरिगेशन एंड पेस्टिसाइड्स यूज किए. किस वजह से यूज किए हैं? क्योंकि उसको क्रॉप चाहिए, तो ये तो उसके लिए बेस्ट टाइम होता है. ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क है. द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज अ मैच्योर. कब करेंगे क्रॉप को? ऑब्वियस बात है कि जब हमारी जो क्रॉप है वो क्या हो जाएगी? मैच्योर हो जाएगी. ठीक है, तो हार्वेस्टिंग इज द प्रोसेस कटिंग एंड कलेक्टिंग द मैच्योर क्रॉप फ्रॉम द फील्ड. हार्वेस्टिंग इंक्लूड द एक्टिविटी लाइक कटिंग, stacking, handling, threshing, cleaning and winnowing. All the processes complete in a harvesting process. These activities can be done individually or with the help of combined harvester. Maybe ये जो प्रोसेस है ये मैनुअली भी होते हैं और मे बी अब ये सभी प्रोसेस जो है ट्रेडिशनल मेथड में या सॉरी मॉडर्न मेथड में यूज होने लगे हैं, तो मे बी इसकी जगह पर हम मशीन यूज करने लग गए हैं. हाँ, जिस दैट मशीन नेम इज हार्वेस्टर. ओके, in harvesting crop are pulled out and cut close to the ground. It is usually 3 to 4 from a cereal crop to mature. Harvesting in our country is either done by manually. जब harvesting process manually done किया जाता है तो which tool we use? Sickle. This type of sickle tool. Okay, which can perform various activities simultaneously. It take about 4 months of cereal crop to like wheat to manure. Mostly जितने भी crops हैं उनको mature होने में कितना time लग रहा है बेटा? 3 and 4 months लग रहे हैं. Okay, और जब भी manually इसको harvest किया जाएगा तो we use a sickle. Okay, harvesting can be done manually or a machine called harvester. The grains of the seed of a crop are attached to the chaff and hence to be obtained the seed grain from the harvest. They have to separate it from the chaff. क्योंकि जो ग्रेन्स है उनके ऊपर एक आपने देखा होगा एक थिन लेयर कवर होती है, उसको हम बोलते हैं चाफ. तो हार्वेस्टिंग प्रोसेस में हम क्या करते हैं? उस क्रॉप ग्रेन को उस चाफ से सेपरेट करते हैं. ओके, द सेपरेशन ऑफ चाफ फ्रॉम द ग्रेन कैन बी डन बाय थ्रेसिंग और विनोइंग. तो हार्वेस्टिंग प्रोसेस में हम इस ग्रेन के ऊपर जो ये चाफ प्रेजेंट होता है इसको टू प्रोसेस वी आर यूज्ड. फर्स्ट वन इज थ्रेसिंग एंड सेकंड वन इज winnowing. Okay, so first one is threshing. Here is a definition of threshing. In the harvested crop, the grain seeds need to be separated from the chaff. This process is called a
threshing. This is carried out with the help of a machine called combined within in fact a harvester as well as a thresher. तो देखिए एक तो मशीन ये जो प्रोसेस है ग्रेन को सेपरेट करना चाप से, दिस प्रोसेस कॉल्ड थ्रेसिंग. अब इसी से रिगार्डिंग एक कंबाइन मशीन यूज होने लगी है जिसको हम वर्ड यूज करते हैं थ्रेसर एंड हार्वेस्टर. दोनों चीज, हार्वेस्टर मीन्स क्या कटिंग करना या कलेक्ट करना, एंड थ्रेसिंग प्रोसेस में क्या हो गया जो ग्रेन्स कलेक्ट हुए उससे चाप को सेपरेट करना. अब एक कंबाइन मशीन जो बन रही है जिसके अंदर हार्वेस्टर भी हो जाता है एंड थ्रेसर भी, यानी कटिंग ऑफ क्रॉप भी हो जाएगा, उसके साथ में चाप भी क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे. तो कंबाइन मशीन आने लग गई है अपनी. ठीक है. तो नेक्स्ट इट इज यूज सेपरेट wheat paddy from the stalk. Threshing is done by the holding and bundles of the hand. देखिए जो ये थ्रेसिंग प्रोसेस है एक तो हो गया मशीन से, और मैनुअली इसको कैसे डन किया जाता है. मैनुअली कई बार इसको कैसे डन करते हैं हमने क्लास 6 में पहले भी रीड किया है, आपको याद आ रहा होगा. वी ऑलरेडी read in a class 6 this topic threshing. Okay, so threshing is done by holding the bundle of stalks in hand and hitting them in a hard surface. Hard surface पर उनको हिट किया जाता है. इन लार्ज फॉर्म थ्रेसिंग इज डन. अगर बहुत बड़े बड़े आपके फॉर्म्स हैं तब आपको मे बी उस मशीन का यूज किया जाता है. दैट मशीन नेम इज थ्रेशर. एक कंबाइंड मशीन है जिसमें both work are doing very good. First one is harvester and second is thresher. Okay, एंड सेकेंड पॉइंट इज फर्स्ट हमने पढ़ा था कि पूरे हार्वेस्टिंग प्रोसेस के अंदर हम इसको जो चाप से सेपरेट करने का जो मेथड है हम कितने मेथड यूज करते हैं, टू. फर्स्ट वन इज थ्रेसिंग एंड सेकेंड वन इज विनोइंग. This topic is also you already studied in a class 6th. I think you all are remember this topic. So just short discussion about the winnowing. Okay, let's start. Winnowing is a method of separating the harvested grains from the light chaff by blowing air. ब्लोइंग एयर के अंदर हम क्या करते हैं, इसको ऊपर से ग्रेन्स को नीचे किया जाता है, जो चाप पार्टिकल है वो बिल्कुल सेपरेट हो जाता है एयर के हेल्प से. तो क्योंकि चाप लाइटर इन वेट होता है, जो हमारे ग्रेन्स है वो थोड़े कंपैरिजन टू चाप हैवियर इन वेट होता है. तो दोनों के अलग अलग बंडल्स जो होते हैं सेपरेट हो जाते हैं. एज द हस्क इज लाइटर इट ब्लो अवे एंड फॉर्म अ हीप सम डिस्टेंस अवे. द ग्रेन्स आर हैवियर एंड दे फॉल स्ट्रेट टू द ग्राउंड फॉर्मिंग अ सेपरेट हीप. Okay, then winnowing process is done. After harvesting, sometimes stalks are left in the field which are burned by farmers. Okay, after harvesting आपने देखा होगा कि जो भी देखिए ग्रेन्स हमारे लिए यूजफुल है. अब उनका जो स्टॉक है यानी स्टेम है, मे बी लीव्स हैं, मे बी रूट्स हैं, है ना, दे आर नॉट यूजफुल फॉर अस. तो सपोज बीच क्रॉप की बात करें तो बीच क्रॉप में हमारे यूज के लिए क्या है, सिर्फ ग्रेन्स इंपॉर्टेंट होते हैं. अदर पार्ट जो प्लांट का या क्रॉप का है इट इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर अवर्स. ठीक है. तो प्लांट विच आर बर्न बाय फार्मर, जो रिमेनिंग पार्ट है आफ्टर हार्वेस्टिंग, जो भी पार्ट बचा है उसको फार्मर्स क्या करते हैं, बर्न कर देते हैं. पहली इज बरेड. शी नोज दैट इज अ कॉज पॉल्यूशन. देखिए आप किसी भी वुड को जब बर्न करेंगे, लीव्स को बर्न करेंगे, पूरे प्लांट को या किसी भी चीज को बर्न करते हैं तो पॉल्यूशन तो कॉज होगा. और इतनी लार्ज अमाउंट में जब हम प्लांट्स को बर्न करेंगे तो कितना पॉल्यूशन होगा. इट में ऑल्सो कैच फायर एंड डैमेज द क्रॉप लाइंग इन द फील्ड. में भी कई बार इसी से फायर जो है हमारी क्रॉप में भी लग जाती है और उससे भी हमारी क्रॉप बहुत डैमेज हो जाती है. तो आप विंटर सीजन के अंदर दिल्ली के आसपास में, हरियाणा में आप जो पॉल्यूशन देखते हैं, जो स्मोक देखते हैं, वो क्या होता है, फार्मर्स क्या करते हैं, इन क्रॉप्स को बर्न करते हैं और उसी वजह से वो पॉल्यूशन जो है इतना इंक्रीज होता है. नेक्स्ट है कि इसका अदर सोर्स क्या हो सकता है. मे बी इसका अदर सोर्स ये हो सकता है कि वो एक बड़ा सारा डिग करें और उसके अंदर इस जितना भी रिमेनिंग पार्ट है हमारी क्रॉप का उसको क्या करें, उसके अंदर रखें, ऊपर सॉइल की लेयर करते हैं. तो आफ्टर सम मंथ्स तो वो कन्वर्ट हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है. लेकिन ये थोड़ा सा इकोनॉमिकली फार्मर के लिए थोड़ा सा होता है, इस वजह से वो एक शॉर्टकट मेथड इसको बर्न करना ज्यादा इजी समझते हैं तो ये करते हैं. लेकिन इससे क्या हो रहा है, पॉल्यूशन डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है. तो इट इज नॉट अ गुड फॉर ऑल. नेक्स्ट वन इज हार्वेस्ट फेस्टिवल. हार्वेस्ट फेस्टिवल किसने, देखिए हमने चैप्टर पूरा स्टार्टिंग से अभी तक रीड किया है. वो फार्मर की हमें पूरी जितना भी लेबर वो यूज कर रहा है, पूरा कितनी मेहनत कर रहा है, कितने मेथड्स को यूज कर रहा है क्रॉप को ग्रो कराने के. तो लास्ट में देखिए हम भी पूरे ईयर कितनी मेहनत करते हैं ना, कभी प्री टर्म में, मिड टर्म में, पोस्ट टर्म में, नेक्स्ट फाइनल टर्म में जो हमारे पास है, हमारी जो मार्कशीट आती है, हमारा रिपोर्ट कार्ड आता है, तो वी ऑल आर हैप्पी, है ना. तो सेम जस्ट लाइक दैट फार्मर्स जब हार्वेस्ट हो जाती है, पूरी क्रॉप कट हो जाती है, तो दे ऑल फार्मर्स आर वेरी हैप्पी. और आपको ये चैप्टर रीड करने पर ये भी क्लियर हो रहा होगा
कि क्रॉप प्रोडक्शन इज वेरी लेबरस प्रोसेस है ना, बहुत हार्ड प्रोसेस है, कितनी मेहनत लगती है इस काम में, है ना। तो हमें जो भी फूड है हमारे घर के अंदर, हम तो आधा खाना लेके उसको ऐसे ही खराब कर दिया, तो हमें फूड की बिल्कुल भी वेस्टेज नहीं करने चाहिए, क्योंकि उसको ग्रो कराने के लिए फार्मर्स की बहुत मेहनत लगी हुई है, ठीक है। तो नेक्स्ट हार्वेस्ट फेस्टिवल, आफ्टर 3 and 4 months of hard work, आफ्टर 3 और 4 months के हार्ड वर्क के बाद देयर कम्स द डे ऑफ द हार्वेस्ट, उनको कटिंग करने का डे आता है, द साइट ऑफ द गोल्डन फील्ड ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप, ये टाइम बहुत ही अच्छा होता है उन लोगों के लिए, लेडन विद ग्रेन फिल द हार्ट ऑफ फार्मर विद जॉय एंड सेंस ऑफ वेलबिंग, जैसा आपका रिपोर्ट कार्ड वाले दिन, जिस दिन आपका रिजल्ट आ रहा होता है, जिस दिन आप लोग जितने हैप्पी होते हैं, वो वैसे उसी तरीके से जो फार्मर्स है उनको भी उतना ही जॉय और हैप्पीनेस लगती है, एंड सेंस ऑफ वेलबिंग, the effort of the past season have borne fruit and it's time to relax and enjoy a little. अब उन्होंने जितना भी हार्ड वर्क किया है, अब टाइम है उनका थोड़ा सा रिलैक्स होने का. The period of harvest is just that great joy and happiness in all parts of India. तो इस great joy को, इस happiness को बनाने का हर पार्ट में, हर जगह पर एक अलग तरीका है, अलग अलग हार्वेस्टिंग फेस्टिवल्स बनाए जाते हैं. मैन एंड वुमेन सेलिब्रेटेड विद द ग्रेट enthusiasm. Special festival associated with the harvest season are just one is Pongal, Vaisakhi, Holi, Diwali, Navanya, and Bihu. All are the harvesting festival. Next point is a storage. We discuss in a next class. I think you all are understand all the point. Okay, class.